Hi, grade 5th. Today I am starting chapter number 20, that is physical divisions of India. What do you mean by physical divisions? It means we are dividing India on the basis of landforms, deserts, plateaus, etc. Warm up. There are physical features of the city or town you live in. There are many possibilities that your city is famous for something. So maybe your city is famous for something, or its physical feature. Is there a river or an ocean nearby? Do you have any river or ocean nearby your city? Yes, we have Machu Nadi, that is Machu River, right? And even we have Navlakhi Port nearby us. Or it is a hilly region? No, our city is not hilly region. The physical feature of the place determines the landform. As I have said that what physical features we are having, it determines our landform, in which type of landform we are living in. Write about the physical features of the people of the place you live in. This is homework for you. In this, you have to write what type of our city is, and what are the important things we have in our city. Scientists believe that the earth was formed from a cloud of dust particles about 4.6 billion years ago. In this, it is told that scientists are believing that our earth is formed with a cloud of dust particles about 4.6 billion years ago. So we can say that our earth is 4.6 billion years old. The surface of the earth is known as crust. What is the meaning of crust? The surface of the earth is known as crust. The surface of the crust of the earth is always moving. As we say, our earth is continuously moving. This results in continents drifting apart and ocean rising and falling. Due to this motion, what is happening is there is continuous flow of sea. There is a continuous movement of the water in seas, rivers, right? So we can say that due to the continuous motion, our oceans are rising and falling. Did you know Australia is a big island and is the only country which is also a continent? This is very important. Why? Because it is very useful information for us. Like Australia is island as well as one of the country as well as the continent. We have not studied continent yet, but we'll definitely study in next classes. Landforms. Any natural shape on the earth's surface is known as landform. What is the meaning of landform? हमारे अर्थ का कोई भी नेचुरल शेप is known as its landform. Landform includes mountains, hills, valleys, plains, plateaus. If I'll ask you the questions, write the types of landforms, then you should write all this. Landforms includes mountains, hills, valleys, plains and plateaus. Most landforms are created through the natural process such as erosion due to the wind and rain. ज़्यादातर
ज्यादातर हमारे लैंडफॉर्म्स जो हैं वो नेचुरल प्रोसेस विच इज इरोजन, उसकी वजह से हुए हैं। एंड इरोजन बाय व्हाट? बाय विंड एंड रेन। हमारे ज्यादातर लैंडफॉर्म्स कैसे बने हैं? वो विंड एंड रेन के इरोजन की वजह से बने हैं। They are also formed because of the weather conditions such as frost and chemical action. वो फ्रॉस्ट और केमिकल एक्शन की वजह से भी बने हैं। फ्रॉस्टिंग क्या होता है? फ्रॉस्टिंग वो होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे माउंटेन्स है, वहां पे अगर स्नो गिरती है तो ड्यू टू वेदर कंडीशन की वजह से जो माउंटेन्स की सतह है, मतलब उसकी जो परत है, उस पे जो बर्फ जमी है वो अगर टेम्परेचर राइज होता है, जैसे अगर वहां पे आइदर सनलाइट गिरी या फिर थोड़ी हीट बढ़ी, तो उसका टेम्परेचर जो है वो हाई होगा, उसकी वजह से वो स्नो पिघलेगा, राइट। और जैसे ही वो स्नो पिघलता है, माउंटेन्स की जो क्रैक्स होती है, राइट, माउंटेन्स में डिफरेंट क्रैक्स होती है, वो क्रैक्स के अंदर पानी चला जाएगा, राइट। वो क्रैक्स के अंदर पानी गया, ओके। नाउ विद द नॉर्मल कंडीशन, जैसे ही सन गया, अगर टेम्परेचर थोड़ा लो जाता है ठंड की वजह से, देन दैट वाटर कैन अगेन गेटिंग फ्रोजन, वो पानी वापस से फ्रीज हो जाता है, बर्फ जम जाती है। तो उस वजह से जब भी वाटर जो है वो स्नो का या आइस का व्हाट शुड आई कॉल, आइस का रूप लेती है, देन इट्स गेटिंग मोर, वो बढ़ जाती है। उसका जो भी आपने कई बार देखा होगा, आप जब बर्फ जमाते हैं, राइट, अगर आपने पूरा भर के रखा है तो जब बर्फ जम जाएगी ऊपर, बाय डिफॉल्ट थोड़ा ऊपर फैल जाएगा। क्यों? क्योंकि वाटर से आइस का शेप थोड़ा बड़ा होता है, कंटेंट उतना ही होता है, लेकिन वो थोड़ा फैलता है। तो जैसे ये माउंटेन्स के क्रैक्स में जो भी वाटर जमा हुआ है वो फ्रीज होने के बाद थोड़ा फैलेगा तो वो अपने आप को, रॉक को तोड़ेगा, वो जो भी माउंटेन है, या फिर वो, ये बहुत लंबा प्रोसेस है, शायद इस प्रोसेस में हजारों साल निकल जाए, लेकिन this type of different movements, this type of different changes are known as erosion, right? Now, other natural events such as eruption of volcanoes and earthquakes also shapes the land. Eruption of volcanoes का मतलब है कि वॉल्केनो को बाहर आना, वॉल्केनो इरप्ट होना, मतलब जो भी हमारा अंदर का लेयर है, वहां पे जो भी हीट है, मोल्टन लावा है, उसका बाहर आना, उसको क्या कहते हैं? इरप्शन ऑफ वॉल्केनोज। एंड अर्थक्वेक भी हमें पता है, मूविंग ऑफ लैंड विद अ फोर्स, वो कौन से भी वे में हो सकता है, बट मूविंग ऑफ लैंड विद अ फोर्स, राइट। तो उस वजह से भी लैंड के शेप्स चेंज होते हैं, राइट। नाउ इंडिया, द 7th largest country of the world, has varied land features. हमारा इंडिया जो 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में, उसके लैंडफॉर्म्स में बहुत सारे वेराइटी ऑफ फीचर्स हैं. इट largely has 6 divisions. So if we'll ask the questions,
How many types of lands are there? How many types of land forms are there in India? So we can say this 7. Mountains, plateaus, plains, deserts, rivers, coastal plains and islands. Mountains, the great mountains of the north. Plateau, the peninsular plateau. Plains, the northern plains. Desert, the Thar desert. Rivers, we have many rivers in India. Narmada, Tapi, Godavari, Sindhu, Kaveri. Many rivers are there, right? So many rivers are there. Coastal plains and lands. The plains which are nearby the seas, जैसे मुंबई में है, then towards the Kerala, साउथ में इंडियन ओशन है, राइट, अरेबियन सीज है, ये सारे उसके आजू बाजू के जो प्लेन्स हैं. और आइलैंड्स हमारे कौन से हैं? अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, ये सारे हमारे आइलैंड्स है. सो मेनली दिस आर 6 divisions of landforms which we have in our India. Now I'll start with mountains. A mountain is a very high point on the earth's surface that rises at least 1000 feet above its surrounding. मतलब कि माउंटेन वो हाई पॉइंट होता है जो अर्थ के सरफेस से ऑलमोस्ट 1000 फीट तक राइज होता है या फिर ऊपर होता है. Some mountains are steep and snow capped. Steep का मतलब है हो सके उतने सीधे, या फिर हम इजी शब्दों में कह सकते हैं इट कैन बी डिफिकल्ट टू माउंट. अगर माउंटेन स्टीप होंगे, ज्यादा सीधे होंगे, तो it will be very difficult for us to track that mounts. And snow capped का मतलब है मोस्टली जो ये सारे माउंटेन्स है वो बर्फ से लदे हुए हैं. हिंदी में से बर्फाच्छादित कह सकते हैं. यस, बर्फाच्छादित, इट्स अ गुड वर्ड. नाउ others have gentle slopes and rounded tops. Means दूसरे जो mountains है उसको gentle slope मतलब easily mountable और rounded top. उनके top जो है वो rounded है, right? In India, the northern mountains includes, northern mountains में क्या क्या आता है? Number 1, the Himalayas, that includes the Himadri, Himachal and Shivalik ranges. ये जो हिमालय की बात हो रही है इसमें ये तीनों रेंजेस हैं, हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक रेंजेस. एंड काराकोरम रेंज दूसरा है, काराकोरम रेंज. द हिमालयाज आर द हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड. हिमालय जो है वो वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज है. Glaciers that are large body of moving ice cover the ranges of the Himalayas. Gangotri and Yamunotri are glaciers on the Himalayan range from which the rivers Ganga and Yamuna starts. ग्लेशियर क्या होता है? ग्लेशियर वो होता है जो माउंटेन्स के टॉप पे बर्फ जमी होती है और जो वो फ्लो करती है. जब वो किसी भी रूप से, जैसे मैंने कहा टेम्परेचर प्लस माइनस हुआ, इफ इट इज फ्लोइंग लाइक, देन दैट ग्लेशियर्स आर कन्वर्टेड और टर्न्ड इनटू द रिवर्स. सो द ग्लेशियर्स गंगोत्री एंड यमुनोत्री ग्लेशियर्स जो है हिमालयन रेंज पे, वो आगे जाके क्या बन जाते हैं? गंगा और यमुना रिवर. द क्लाइमेट इन द माउंटेन इज यूजुअली कोल्ड. माउंटेन का जो क्लाइमेट है वो जनरली ठंडा होता है.
Coniferous trees such as pine, fir, spur grow in the mountains. If a question arises that which type of trees are found in mountain ranges, so the answer will be conifer trees. Conifer trees का टाइप है, और अगर एग्जाम्पल ऑफ ट्रीज पूछा तो पाइन ट्री, फर ट्री एंड स्क्रब्स ट्री. राइट. नाउ plateaus. Plateaus are flat land higher than the landforms around them. The plateaus rise straight up the land and plateaus are often called tablelands. Plateaus को tablelands भी कहा जाता है. Plateaus कैसे होते हैं? जैसे मैंने कहा माउंटेन्स सीधे हाई राइज पे आते हैं. प्लेट्यूज क्या होता है? प्लेट्यूज थोड़े हाई राइज पे होते हैं, लेकिन उसके बाद वो लेवल पे होते हैं. दे आर सिमिलर टू द प्लेन्स बट ऑन द हायर साइड. थोड़े हायर साइड पे होते हैं. द इंडियन पेनिनसुला स्ट्रेच फ्रॉम द साउथ टू द नॉर्थ प्लेन्स to Kanyakumari in southern India. It comprises two parts, that is Central Highlands and Deccan Plateau. ये दोनों हमारे प्लेट्यूज हैं. अगर आपको प्लेट्यूज के एग्जाम्पल पूछे तो सेंट्रल हाईलैंड्स एंड डक्कन प्लेट्यू. द सेंट्रल हाईलैंड्स इंक्लूड्स अरवल्लीज, द मालवा प्लेट्यू एंड सम पार्ट्स ऑफ द विंध्य रेंज. जो हमारे सेंट्रल हाईलैंड्स हैं उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? अरवल्लीज, मालवा प्लेट्यू एंड सम पार्ट्स ऑफ विंध्या रेंज. द डक्कन प्लेट्यू कवर्स द मोस्ट ऑफ द सॉर्दर्न इंडिया. हमारा जो डक्कन प्लेट्यू है वो हमारे मोस्ट ऑफ द सॉर्दर्न इंडिया, सॉर्दर्न इंडिया मतलब नीचे डाउन केरला साइड, उसको कवर करता है. गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आर द इम्पोर्टेंट रिवर्स ऑफ दिस प्लेट्यू. और इस प्लेट्यूज में मोस्टली कौन सी रिवर्स आती हैं? गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी. नाउ प्लेन्स. लार्ज एरियाज ऑफ लेवल और gently rolling lands are called plains. What is called plains? Large level areas or gently rolling land are called plains. जैसे प्लेट्यू थोड़े हाई जाके लेवल पे होते हैं, वैसे ही प्लेन्स सीधे ही होते हैं. प्लेन्स कैन बी ड्राई एंड ग्रासी फार्मलैंड्स. प्लेन्स या तो ड्राई हो सकते हैं या फिर ग्रासी फार्मलैंड्स हो सकते हैं, मतलब वहां पे ज्यादातर घास उगी हो सकती है. दे कैन ऑल्सो बी वेट लोलैंड्स सराउंडिंग रिवर्स एंड स्ट्रीम्स. प्लेन्स ऐसे भी हो सकते हैं जिसके आजू बाजू अगर रिवर्स और स्ट्रीम्स हैं तो वो गीली मिट्टी वाले भी हो सकते हैं. दिस प्लेन्स आर ऑल्सो नोन एज फ्लड प्लेन्स. इस टाइप के प्लेन्स को फ्लड प्लेन्स भी कहा जाता है. प्रेरीज एंड savannas are grassy plains without trees. Prairies and savannas grassy plains है जिसमें trees नहीं है. The northern plains of India or Indo-Gangetic plains extend from Punjab to the western Assam to eastern India. The plains are fertile areas and have the waters of Satluj, Ganga and Brahmaputra. प्लेन्स, इस टाइप के जो प्लेन्स है वो काफी फर्टाइल होते हैं
फर्टाइल प्लेन्स होने का मतलब है कि इसको मोस्टली फार्मिंग के लिए ज्यादा यूज किया जाता है। और इनको कहाँ का पानी मिलता है? सतलज एक रिवर है, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ये तीनों रिवर्स के नाम हैं। As the water from the melting glaciers and rainfall collects these rivers, the rivers makes further smaller rivers called tributaries. Tributaries क्या होते हैं? Tributaries वो होते हैं जो बड़े बड़े रिवर्स के पार्ट्स बन जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हिमालयन माउंटेन है, ठीक है, यहाँ पे यमुना और गंगोत्री और यमुनोत्री ग्लेशियर से गंगा और यमुना बहती है, राइट। पर जैसे जैसे नदियां आगे बढ़ती जाती है वो नदी कहीं ना कहीं फटती है। डजंट मीन कि रिवर फटती है, इट मीन्स कि वो अपने पार्ट्स, वो अपने वेज खुद डिसाइड करती है। तो जैसे एक नदी जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे बह रही है, तो एक स्ट्रीम यहाँ गई, एक स्ट्रीम, तो ये जो नदियां अपनी राह चुनती है, दैट ये जो उनकी बाईवेज है, इसे ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। एज अ रिजल्ट लॉट ऑफ sediments from the mountains is disposed on the river banks, thus making plains highly fertile. Yes, जब भी ट्रिब्यूटरीज बनती जाती है वो अपने साथ बहुत सारी चीजें लेके आती है। मे बी माउंटेन्स के पत्थर हैं, फिर अगर आजू बाजू में ट्रीज लगे हैं उसको भी लेके आना। ये तो साथ साथ में वो जितनी भी चीजें, वो नदियां जितनी भी चीजें कैरी करती है उसको लाके एक जगह, मतलब वो फैलते फैलते एक जगह रुक जाती है। उस वजह से हमारी जो लैंड है, प्लेन्स जो होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल हो जाते हैं। बहुत ही ज्यादा फर्टाइल को हिंदी में आई थिंक फलद्रुप कहते हैं। फलद्रुप मतलब कि उसमें एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से एक्सपैंड किया जा सकता है, बहुत अच्छे से उसको एग्रीकल्चर मतलब हमारा जो भी क्रॉप है उसकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है, राइट। As a result, a lot of sediments from the mountains is deposited in the river banks. River banks मतलब नदी के किनारे, thus making the plains highly fertile. जैसे मैंने कहा कि वो जो भी चीजें छोड़ती है उसकी वजह से जो हमारे नदी के किनारे हैं वो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल हो जाते हैं। Plains are suited for the agriculture and are heavily populated. Yes. प्लेन्स मोस्टली एग्रीकल्चर के यूज होते हैं और वो हेवीली पॉपुलेटेड होते हैं। यस, मोस्टली लोग प्लेन्स में रहना ज्यादा पसंद करते हैं ताकि उनको हर चीज इजीली मिल जाए, उनका कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इजीली हो जाए, सो वो लोग प्लेन्स में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, राइट।